क्योंकि लास्ट टाइम हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल की डेवलपमेंट की थी और उस कॉन्टेक्स्ट में जो मेथडोलॉजी हमने सेट की थी कि if the small signal model becomes applicable, then we can separate DC and AC analysis. First, we'll start with DC analysis by drawing the DC equivalent circuit. So the first step is to draw the DC equivalent circuit, perform the DC analysis, determine. जी कोई क्वेश्चन है यार, अदरवाइज अपना माइक म्यूट कर दें. यदि बेसी तासो किरकम बसो खुदा की रोने सा शाम माइक अपना म्यूट करें यार. So small signal model के केस में हमारी methodology ये है कि you start with DC equivalent circuit, you perform the analysis, you determine all node voltages and branch currents, particularly the Q point of the diode, DC VD and DC ID. Then you will determine the small signal model parameters. So small signal model parameters इस केस में diode के केस में there is just one R small d, which can be written as VT divided by ID. After this step आप AC equivalent circuit draw करेंगे. AC equivalent circuit के केस में you are going to suppress the DC sources to perform the analysis. AC equivalent circuit के बाद you will draw the small signal equivalent circuit. Small signal equivalent circuit. Small signal equivalent circuit और AC equivalent circuit में just ये फर्क है कि you are going to replace the diode by its equivalent resistance. तो AC equivalent circuit में जो diode मौजूद था उसे just आप replace कर दें by equivalent resistance R small d to get the small signal equivalent circuit. You perform the analysis and determine the desired AC voltages and DC currents. ठीक है, ये हमारी basic methodology है. And the final step is verification. You must verify at the end whether the small signal model was actually applicable or not. So small signal model की applicability को check करने के लिए VD must be less than 5 millivolt. So अगर end के पर आपको diode के cross voltage less than 5 millivolt मिलती है तो then आपकी analysis valid है. Otherwise you have to re-perform the analysis using the alternate method, जो कि इस केस में just exponential model है which can deal with both DC and AC signals present in the circuit. तो ये आपकी basic methodology है using the small signal model, and let's apply this method on a problem ताकि ये clear हो जाए. So let's take a look at example 4.5. We have a circuit. Here R is equal to 10K. R आपको 10K given है. Power supply जो V plus है, it has a DC value of 10 volt on which is superimposed a 60 Hz sinusoid of 1 volt peak amplitude. सबसे जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है जब आप देख रहे हैं कि स्मॉल सिग्नल मॉडल आपने यूज करना है या नहीं, तो देयर मस्ट बी बोथ डीसी एंड एसी एक्साइटेशंस प्रेजेंट इन द सर्किट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर सप्लाई जो है वो 10 वोल्ट की है, यानी आपको डीसी अवेलेबल है, और उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि 60 हर्ट्ज की साइनोसॉइड है विद 1 वोल्ट पीक एम्पलीट्यूड, वो भी ओवरराइड हुई हुई है डीसी के ऊपर. सो यू हैव बोथ डीसी एंड एसी एक्साइटेशंस प्रेजेंट इन द सर्किट. So we can start with an assumption that the small signal model is applicable. We perform the analysis and then later we verify that the small signal model was applicable or not. Calculate the DC voltage of the diode and the amplitude of the sine wave signal appearing across it. Assume that the diode has 0.7 volt drop at 1 milliamp current. So इस सर्किट को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर V प्लस हमें पता है कि is a combination of DC and AC. So it's a combination of DC and AC. DC भी है इसमें और AC भी है. So our first step is to draw the DC equivalent circuit. So DC equivalent circuit का क्या मतलब है कि आप AC सोर्स को सप्रेस करेंगे तो ये जो 1 वोल्ट की वेरिएशन है इसको आप इग्नोर कर देंगे and you will proceed with just the DC. So DC equivalent circuit में you have 10 volt, you have R of 10K and you have this diode.
So this is your DC equivalent circuit. This is VD and this would be ID. ठीक है, इसकी हम एनालिसिस कर लेते हैं. So let's start with the simplest model available to us, the constant voltage drop model. So by constant voltage drop model हम क्या कहते हैं कि VD is equal to 0.7 volt, then ID by passive sign convention by Ohm's law across the resistor R, which was 10k resistor, is equal to 10 minus 0.7 divided by 10k is equal to 0.93 milliamperes. तो अब कैसे चेक करें कि कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल एप्लीकेबल है यहाँ पर कि नहीं. जो आपको इसने इनिशियल पॉइंट दिया है उसमें इसने बताया है कि द डायोड हैज़ अ ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट एट 1 मिली एम्प करंट. और यहाँ पर जो एनालिसिस हमने की है उसमें आपके पास जो करंट आया इट इज़ वेरी क्लोज टू 1 मिली एम्प and the voltage is 0.7. Since this current is very close to 1 milliamp, so that's why we can conclude that constant voltage drop model is okay here. अगर ये significantly ये different आता, for example 2 milliamp आ जाता, तो फिर आप constant voltage drop model से इस problem को नहीं solve कर सकते थे. आपको exponential model along with iterative analysis आप use करते और problem को उसकी मदद से solve करते. Circuit equation was 10 minus VD divided by 10K. यार ये माइक क्यों नहीं म्यूट कर पा रहा है यार, ये कौन है? मोहसिन अली, आपका तीसरा सेमेस्टर है ऑनलाइन तरीके में और स्टिल वो आपको आया नहीं है. आपका क्वेश्चन है तो आप ज़रूर अनम्यूट करें और पूछें, लेकिन उसके अलावा तो क्लास को डिस्टर्ब ना करें ना. सो इस केस में हम ये कह रहे हैं कि चूंकि आपके पास रिजल्ट्स आर वेरी क्लोज टू 1 मिली एम्प एंड 0.7 वोल्ट, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल के यूज जो है यहाँ पर एप्लीकेबल है. सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने डीसी एनालिसिस का स्टेप कर लिया, आपने डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया, आपने डीसी एनालिसिस परफॉर्म कर ली, आपने डीसी वीडी और आईडी यहाँ पर निकाल लिया. द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप यहाँ पर स्मॉल सिग्नल मॉडल पैरामीटर निकालें. तो स्मॉल सिग्नल मॉडल पैरामीटर आपके पास जस्ट आर डी है. सो आर डी आपने निकालना है. आर डी इज वी टी डिवाइडेड बाय आई डी. So 25 milli divided by 0.93 milli. So RD आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 26.9 ohms. So ये आपने सेकेंड स्टेप कर लिया, आपने स्मॉल सिग्नल मॉडल पैरामीटर निकाल लिया जो कि इस केस में RD था. द थर्ड स्टेप इज टू ड्रॉ द AC इक्विवेलेंट सर्किट. सो AC इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्या कहते हैं, देखिए आपके पास डीसी इक्विवेलेंट सर्किट क्या गिवन था, आपके पास डीसी इक्विवेलेंट, आपके पास टोटल सर्किट क्या गिवन था, आपके पास टोटल सर्किट था कि ये आर है एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी. दिस इज द टोटल सर्किट. सो एसी इक्विवेलेंट सर्किट अभी अगर आपने ड्रॉ करना है तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब ये है कि आपने डीसी सोर्स को सप्रेस करना है, विच मीन्स यू विल जस्ट रिटेन दिस 1 वोल्ट, दिस एसी वेरिएशन. So AC variation को आपने retain रखना है and this will be your AC equivalent circuit. So this is called AC equivalent circuit. So इस AC equivalent circuit के बाद next step is to draw the small signal equivalent circuit. So small signal equivalent circuit और AC equivalent circuit में just फर्क ये है कि you need to replace the diode with its equivalent resistance RD. So small signal equivalent circuit आपके पास आ जाएगा. We have the AC source Vi, we have the resistor R, then we have this resistance RD. अब इसकी हम एनालिसिस करके निकाल सकते हैं VD. जी बताइए ज़रा इसकी अगर आप एनालिसिस करें इस सर्किट में तो VD क्या आ जाएगा जी. So this is your AC equivalent circuit और इसकी हम एनालिसिस करके VD निकालना चाह रहे हैं. RD हमें पता है और कैपिटल R भी हमें गिवन है. कैपिटल R हमें 10 के गिवन है. RD हम ऑलरेडी पिछले स्टेप्स में निकाल चुके हैं.
एंड RD वाज 26.9 ohms। जी VD कैसे निकाला जा सकता है बताइए ज़रा, VD क्या आ जाएगा आपके पास? सर RD over total resistance into VS। एग्जैक्टली, तो ये सिंपल आप देख सकते हैं, इट्स अ सिंपल वोल्टेज डिवाइडर है। सो वी हैव, एंड सिंस Vs में वेरिएशन जो है ±1 वोल्ट की है, एंड RD डिवाइडेड बाय RD प्लस कैपिटल R जो आपके पास आता है वो 2.683 मिली आता है, एंड सिंस Vs इज ±1 वोल्ट, सो Vd की जो पीक वैल्यू है हमने यहाँ पर कंप्यूट की है, इट इज इक्वल टू 2.683 मिली वोल्ट। इसको देख के कैन वी से समथिंग अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द स्मॉल सिग्नल मॉडल? इज द स्मॉल सिग्नल मॉडल वैलिड? यस सर। तो स्मॉल सिग्नल मॉडल की वैलिडिटी के लिए हमने क्या कहा था कि दिस maximum AC signal value must be less than 5 millivolt, which is true here. So now we can conclude that small signal model is applicable, और ये जो हमने एनालिसिस की है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे क्या स्टेप थे? हमने DC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया, DC एनालिसिस की, फिर हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल पैरामीटर की वैल्यू निकाली जो कि RD थी, फिर हमने AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया बाय सप्रेसिंग द DC सोर्सेज, देन वी ड्रॉ द स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट। स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट में हमने जस्ट डायोड को रिप्लेस किया इस रेजिस्टेंस स्मॉल RD से, सो दिस इज कॉल्ड स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट। स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट की हमने एनालिसिस की टू डिटरमिन द AC voltage VD, and then we verify whether the small signal model is applicable or not. सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में स्मॉल सिग्नल मॉडल एप्लीकेबल था, तो यहाँ पर आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो गई। अगर स्मॉल सिग्नल मॉडल एप्लीकेबल ना आता तो फिर ऑब्वियसली फिर आपकी ये एनालिसिस वैलिड ना रहती, एंड देन वी हैव टू रिफर बैक टू द एक्सपोनेंशियल मॉडल टू परफॉर्म द एनालिसिस, क्योंकि आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जिसमें स्मॉल सिग्नल मॉडल एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो एंड देन विल सी कि आप किस तरीके से एक्सपोनेंशियल मॉडल की मदद से जेनेरिक एनालिसिस कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हम सर एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है। जी जी सर ये आरडी किस तरह कैलकुलेट किया हमने? जी RD हमने सेकंड स्टेप में निकाला था, RD इज इक्वल टू VT डिवाइडेड बाय ID से। तो फर्स्ट स्टेप में जब आपने DC एनालिसिस कर ली थी तो आपके पास ID आ गया था, एंड फ्रॉम दैट ID जो कि आपने 0.93 मिली एम्पेयर निकाला था, वी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस एज 25 मिली डिवाइडेड बाय 0.93 मिली इक्वल टू 26.9 ohms। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेप था जिसमें आपने स्मॉल सिग्नल। सर ये VT कहाँ से आया है? जी सर ये VT कहाँ से आया है? आपने पिछला कोई लेक्चर नहीं लिया? यस सर, पिछला लेक्चर नहीं लिया था सर, उस दिन यूनिवर्सिटी गया हुआ था मैं पेपर शोइंग के लिए। वो उसको वीकेंड पे लेना था ना यार। ठीक है सर, मैं सुन रहा हूँ। VT हमने कहा था कि VT की वैल्यू रूम टेम्परेचर के ऊपर 25 मिली वोल्ट है, लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की है। तो इस प्रॉब्लम में चूंकि आपको कोई टेम्परेचर के बारे में बात नहीं की गई, तो हमने यही कहा था कि जब प्रॉब्लम में आपको टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा तो वी विल एज्यूम रूम टेम्परेचर एंड वी विल सेट VT इक्वल टू 25 मिली वोल्ट्स। So VT is equal to 25 millivolts at room temperature. So since diode का जो forward characteristic है, it is quite steep, so the current increases significantly while the voltage changes are quite small. So that's why we can use the diode forward drop in voltage regulation. Recall करें ये वाला curve, तो the curve is quite steep, so it can be used for voltage regulation application. Also ये curve का जो part है जो reverse breakdown region में है, it is also very steep, so it can also be used for voltage regulator application. So ये जो आपके पास reverse breakdown है, it is more compatible, it is ये ज़्यादा यूज़फुल है, it is more useful for voltage regulator application, क्योंकि यहाँ पर आप अपना desired VCK चूज़ कर सकते हैं by choosing a suitable zener diode. However, जब अगर आप forward characteristic को यूज़ करते हैं तो you can achieve regulated voltages only in multiples of 0.7 volt.
0.7 कर सकते हैं, या 2 डायोड्स को सीरीज में लगा के 1.4 कर सकते हैं, या 3 डायोड्स को सीरीज में लगा के 2.1 वोल्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन. सो दिस कैन बी यूज्ड, बट इसमें जस्ट अब डिस्क्रीट स्टेप्स में कुछ वोल्टेजेस हैं जो आप अचीव कर सकते हैं और उन पे रेगुलेशन अचीव की जा सकती है. So voltage regulator is a circuit that provides a constant DC output voltage. So it is a circuit that maintains its output voltage in spite of the changes in the source voltage. Supply voltage में कोई changes हो रही हैं उनके बावजूद भी this circuit will maintain the output voltage, and also in spite of the changes in the load current. लोड भी आपका वेरी कर रहा है तो उसके बावजूद भी वो आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करेगा. सो अ वोल्टेज रेगुलेटर इज अ सर्किट दैट मेंटेन्स इट्स डीसी आउटपुट वोल्टेज in spite of the changes in supply voltage, in spite of the changes in load current. So इस किस्म का सर्किट बनाया जा सकता है using the diode forward characteristic. So let's consider an example 4.6 to see कि ये कितना अच्छा वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे काम कर सकता है. So we have this circuit available here. A string of 3 diodes is used to provide a constant voltage of 2.1 volt. So यहाँ पर आपने 2.1 volt आपको कहा जा रहा है कि आपने अचीव करनी है at this node. We would like to calculate the percentage change in this regulated voltage caused by पार्ट ए में हम असेस कर रहे हैं कि पावर सप्लाई में अगर चेंज हो रही है तो उसके रिलेटिव आउटपुट वोल्टेज कितनी चेंज होगी. पार्ट बी में हम असेस कर रहे हैं कि अगर लोड करंट चेंज हो रहा है तो उसके रिलेटिव कितनी आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रही है. सो वी वुड लाइक टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज in the output voltage relative to plus minus 10% change in the power supply voltage, and because of the connection of 1 kilo ohm load resistance. तो यहाँ पर चूंकि एक चेंज आ रही है, मतलब एक फिक्स्ड वोल्टेज और उसमें कुछ चेंज भी आ रही है, तो लेट्स ट्राई टू अप्लाई द स्मॉल सिग्नल मॉडल एंड विल सी के क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, एंड एट द एंड वी विल आल्सो check the validity of that small signal model. So let's start with part A. Part A में ये चीज़ आपके पास प्रेजेंट नहीं है, लोड की हम बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि सप्लाई वोल्टेज है और उसमें चेंज आ रही है प्लस माइनस 1 वोल्ट की, एंड वुड लाइक टू सी ये प्रॉब्लम हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे. So let's consider part A first and let's apply small signal model. जी, what should be the first step? क्या फर्स्ट स्टेप होना चाहिए? हमने कहा कि स्मॉल सिग्नल मॉडल हम चूज करेंगे क्योंकि कोई फिक्स्ड वैल्यू है और कोई चेंज भी हो रही है. व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? सर डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे. सो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे हम. सो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट में हमें क्या करना पड़ेगा? इस चेंज को हम सप्रेस करेंगे, राइट, बिकॉज चेंज इज सम टाइम वेरिंग कंपोनेंट और सम एसी. सो इस चेंज को हम सप्रेस करेंगे. सो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट इज this is fixed at 10 volts, this is 1k, and we have a string of diodes here. अच्छा, अब ये देखिए तीनों डायोड्स चूंकि सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनके थ्रू एक ही करंट होना चाहिए. अगर तीनों डायोड्स के थ्रू एक ही करंट है तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट रिगार्डिंग द वोल्टेज? वोल्टेज क्या आनी चाहिए हर डायोड के क्रॉस? शुड दे बी सेम और शुड दे बी डिफरेंट? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सेम हो गया. सेम होगी, राइट, बिकॉज आप इस तरह अगर आईवी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो यू आर सेइंग कि आपने एक फिक्स्ड करंट है, तीनों डायोड्स में से एक फिक्स्ड करंट है ID, सो द कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज शुड बी द सेम. सो तीनों डायोड्स के क्रॉस सेम वोल्टेज आनी चाहिए. और वोल्टेज V आउट यहाँ पर हमें बताई जा रही है कि दिस V आउट इज इक्वल टू 2.1 वोल्ट. तो VD फिर आपके पास क्या आ जाएगी? VD इज इक्वल टू 2.1 डिवाइडेड बाय 3 is 0.7 वोल्ट. एंड ID आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये नोड वोल्टेज तो आपको ऑलरेडी गिवन है, 2.1 वोल्ट है. सो ID मस्ट बी इक्वल टू 10 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाय 1k और इट इक्वल टू 7.9 मिली एम्पेयर्स. सो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, हमने DC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ की है, DC एनालिसिस की है, DC वोल्टेज अक्रॉस ईच डायोड एंड DC करंट थ्रू ईच डायोड हमने यहाँ पर डिटरमिन कर लिए. So VD is 0.7 volt
and ID is 7.9 milliampere. तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया. सेकेंड स्टेप इज स्मॉल सिग्नल मॉडल पैरामीटर. स्मॉल सिग्नल मॉडल पैरामीटर्स आपने निकालने हैं. अब चूंकि ये तीनों डायोड्स का सेम करंट है और सेम वोल्टेज है, सो सेम रेजिस्टेंस ही आएगी आपके पास फॉर ईच डायोड, एंड दैट आर डी इज इक्वल टू वी कैपिटल टी, द थर्मल वोल्टेज डिवाइडेड बाय आई कैपिटल डी. तो आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम में टेम्परेचर के बारे में कोई बात नहीं की गई. सो वी विल एज्यूम रूम टेम्परेचर, एंड इफ यू रिकॉल द रूम एट रूम टेम्परेचर वी टी इज इक्वल टू 25 millivolts. So 25 milli divided by ID is 7.9 milli. So this is equal to, resistor की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3.2 ohms. So this 3.2 ohms is valid for each and every diode. So हर डायोड जो है इस रेजिस्टर से रिप्लेस किया जा सकता है for the purpose of AC analysis. तो ये आपके पास सेकंड स्टेप हो गया. आपने डीसी पॉइंट निकाल लिया, फिर आपने स्मॉल सिग्नल मॉडल निकाल लिया. जी नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाता है एसी इक्विवेलेंट सर्किट. तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास क्या आ जाएगा? गिवन सर्किट में आप क्या चीज़ सप्रेस करेंगे फॉर एसी इक्विवेलेंट सर्किट? सर डीसी सोर्स सप्रेस कर देंगे. राइट, तो ये 10 वोल्ट को आप सप्रेस कर देंगे एंड उसकी जगह जस्ट आपके पास एक एसी सोर्स रह जाएगा. सो वी विल हैव एसी सोर्स, वी हैव अ रेजिस्टर एंड 3 डायोड्स. सो एसी इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास इस फॉर्म का आ जाना चाहिए. राइट, देखिए एग्री करते हैं. आपने डीसी सोर्स को सप्रेस कर दिया, यू आर जस्ट लेफ्ट विद एसी सोर्स जिसमें वेरिएशन प्लस माइनस 1 वोल्ट की है. यू हैव अ रेजिस्टर ऑफ 1K एंड यू हैव ये, बल्कि मैंने स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिए, दोबारा कर लेते हैं यहाँ पर. सो हमारे पास गिवन सर्किट था 10 वोल्ट प्लस माइनस 1 वोल्ट, आपके पास R 1K है और आपके पास 3 diodes हैं connected in series. So this is what you have. This is the given circuit, and we would like to draw the AC equivalent circuit. So AC equivalent circuit में you will suppress the DC source. DC source को suppress कर दें, and since it's a voltage source तो इसको आप 0 volt set कर देंगे. तो you are left with an AC source, then the resistor R of 1 kilo ohms, then 3 diodes. So this is called the AC equivalent circuit, where you have suppressed the DC sources. So the next step is to draw the small signal equivalent circuit. So small signal equivalent circuit के लिए you just replace each diode by its small signal model. So हर डायोड को आपने एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर देना है. तो यहाँ पर आपके पास 3 रेजिस्टर इन सीरीज मिल जाएंगे, एंड सिंस रेजिस्टर्स ऐड इन सीरीज तो मैंने उसकी जगह 3RD लिख दी है. So this is your small signal equivalent circuit. So looking at the small signal equivalent circuit, बताइए ज़रा वी आउट आपके पास क्या आ जाएगी? अब स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट की एनालिसिस करके हम आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं. हाँ जी, इस सर्किट के एनालिसिस करके वी आउट बताई जा सकती है. ये आप देख सकते हैं दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं. सो जस्ट आपने यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई कर लें. सो 3RD डिवाइडेड बाय 3RD प्लस 1K टाइम्स VS. RD हमने निकाला हुआ है 3.2 ohms था, तो यहाँ पर V आउट आ जाएगा आपके पास. V आउट इज इक्वल टू 9.5 millivolt times 9.5 milli times Vs, and since Vs is varying between plus minus 1 volt, so that means V out will be varying between plus minus 9.5 millivolt.
So the peak value for V out is 9.5 millivolt. So this is what we have concluded using the voltage divider, that V out peak is 9.5 millivolt. So looking at this value, can you comment on whether the small signal model is applicable or not? अब आपने बाकी सारे steps तो कर लिए, अब just एक last step रह गया, the verification step. जी क्या कहते हैं? Is the small signal model applicable? No, sir. नोट करें कि यहाँ पर V out कितने डायोड्स के क्रॉस है और एक सिंगल डायोड के क्रॉस क्या वोल्टेज आएगी? Sir, divided by 3. Exactly. So VD peak is the voltage across across a single diode, and it is equal to V out divided by V out peak divided by 3 and is equal to 3.17 millivolt. जी आप बताइए क्या स्मॉल सिग्नल मॉडल एप्लीकेबल है? Yes, sir. Yes, sir. Right? So it is applicable because this number is less than 5 millivolt. So small signal model is applicable here. अच्छा, अब जो हमने क्लेम किया था कि we have achieved voltage regulation, how can we quantify that claim? So to quantify that claim, we need to determine and study the percentage changes at the input and the output. So the percentage change in the supply voltage is the change divided by the nominal value, which was 10 volt, multiplied by 100, 10%. So supply voltage में 10% की change थी और output voltage में कितनी change है? Percentage change at the output. Percentage change at the output is the change 9.5 milli divided by the nominal value जो कि 2.1 volt थी, multiply by 100. So this is just 0.45%. So percentage change को अगर आप examine करें तो then you can see whether the regulation has been achieved or not. So at the input there was a percentage change of 10%, while at the output the percentage change is just 0.45%. So based on this आप देख सकते हैं कि आपने इस percentage change को significantly reduce कर दिए. So that's why we're saying कि आपकी जो output है उसमें much less variation है relative to the input. So at the output corresponding to, there is a 10% change in the supply voltage, while there is a small 0.45% change in the output voltage. So you have achieved a significant improvement, or in other words, you have achieved voltage regulation. तो ये पार्ट ए था इस प्रॉब्लम का जो अभी हमने की है, और पार्ट ए में हम ये स्टडी करना चाह रहे थे कि सप्लाई वोल्टेज अगर चेंज हो रही है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज किस तरह से चेंज हुई है. एंड वी हैव कंक्लूडेड दैट देयर इज अ प्लस माइनस 9.5 मिलीवोल्ट चेंज इन द आउटपुट corresponding to plus minus 1 volt change in the supply voltage. So let's take a look at part B. So part B के लिए हम इस चेंज को नहीं स्टडी कर रहे, हम कह रहे हैं कि ये वोल्टेज फिक्स्ड है, एंड द चेंज दैट वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इज कि जब आपने इस लोड को यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, सो इसको हमें चेंज के टर्म्स में सोचना पड़ेगा. इनिशियली आप कहेंगे कि दिस वाज द सर्किट, ये आपका इनिशियल सर्किट था, 10 वोल्ट था, R1K था और 3 डायोड्स थे, और उस केस में हमने ऑलरेडी एनालिसिस की है कि VD आपके पास 0.7 वोल्ट है और ID आपके पास 7.9 मिली एम्पियर है. एंड ऑल ऑफ अ सडन आपने यहाँ पर एक RL ऑफ 1K का एक लोड आपने इस नोड पे कनेक्ट कर दिया. सो जब आपने 1K का लोड इस नोड पे कनेक्ट किए तो बाय ओम्स लॉ इम्प्लाइज दैट अ करंट ऑफ, यहाँ पर देखें इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करना चाहिए 2.1 डिवाइडेड बाय 1 मिली. सो 2.1 मिली एम्प का लोड करंट RL में से फ्लो करना चाहिए. एज सुन एज यू कनेक्टेड this resistor at this node, there will be a current flow of 2.1 milliamperes through this RL. Then what अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस डायोड के करंट के साथ क्या होगा? So that means कि डायोड का करंट must be reduced by the same value. So in other words, हमने चूंकि चेंज के टर्म्स में इसको सोचना है, so del ID is equal to minus 2.1 milliampere. माइनस साइन का यहाँ पर क्या मीनिंग है? माइनस साइन मीन्स हियर that the current is being reduced by 2.1 milliampere. जी एक दफ़ा फिर से देख लें, हमने इस प्रॉब्लम को चूंकि स्मॉल सिग्नल मॉडल से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ अ चेंज. चेंज क्या है कि इनिशियली आपके पास लोड कनेक्टेड नहीं था और उस केस में
डायोड का करंट जो था 7.9 मिली एम्पेयर था और वी आउट जो थी वो 2.1 वोल्ट थी। फिर आपने लोड कनेक्ट कर दिया। सो चूंकि आपने लोड कनेक्ट कर दिया, सो बिकॉज ऑफ दिस लोड, बिकॉज ऑफ Ohm's law, 2.1 milliampere has to flow through this RL. So if 2.1 milliampere is flowing through this RL, then the current through this diode, by KCL, the current through the diode must be reduced by the same quantity. So we are saying that the change in the current, the change in the diode current, del ID is minus 2.1 milliamperes. If this is a change, then del VD must be equal to RD times del ID. Strictly speaking, इसको लोअर केस यूज करना चाहिए क्योंकि हम चेंज की बात कर रहे हैं. So del VD must be equal to RD times del ID because each diode is characterized by the resistor RD as far as the change is concerned. So change के terms में this Ohm's law is applicable and we can determine RD हमने एक single diode के लिए निकाला था 3.2, del ID is minus 2.1 milli and the answer would be minus 6.72 millivolt. यहाँ पर नोट करें हमने एक सिंगल डायोड के लिए वोल्टेज निकाली है. सो इस रिजल्ट को देखते हुए बताइए क्या क्या स्मॉल सिग्नल मॉडल एप्लीकेबल है इस प्रॉब्लम के लिए. हाँ जी, क्या कहते हैं, क्या स्मॉल सिग्नल मॉडल एप्लीकेबल है फॉर दिस प्रॉब्लम? हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल से सॉल्व की है ना, तो इज द स्मॉल सिग्नल मॉडल एप्लीकेबल हियर? देखिए, स्मॉल सिग्नल मॉडल की एप्लीकेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो मैक्सिमम चेंज आ रही है अक्रॉस अ सिंगल डायोड, उसका मैग्नीट्यूड जो है इट मस्ट बी लेस देन 5 मिली वोल्ट. क्या ये कंडीशन ट्रू है यहाँ पर? No, sir. So you can see that कि ये magnitude is not less than 5 millivolt. So this is not true. So small signal model cannot be applied to solve this problem. So ये जो हमारी एनालिसिस है इससे जस्ट हमें ये पता लगा है कि स्मॉल सिग्नल मॉडल यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जा सकता. So now we must go back to the more generic method, the exponential model, to solve this problem. So small signal model से हमने इसको कोशिश की, हमने एनालिसिस की, हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर उसको चेंज के टर्म्स में लिखा और रिजल्ट हमने निकाला है कि स्मॉल सिग्नल मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल. सो वी हैव टू गो बैक टू द मोर जेनेरिक एक्सपोनेंशियल मॉडल एंड परफॉर्म द एनालिसिस अगेन. जब आप एक्सपोनेंशियल मॉडल को करेंगे तो पहले आप लोड के साथ कर लेंगे. लोड के बगैर आपने ऑलरेडी किया हुआ है. जब लोड नहीं कनेक्टेड था उस केस में आपने ऑलरेडी एनालिसिस की थी और उस केस में आपके पास आया था वी डी इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट एंड आई डी इज इक्वल टू 7.9 मिली एम्पेयर. सो वंस वी हैव कंप्यूटेड कि इस वक्त क्या है वी डी और आई डी, तो उस वी डी में से फिर हम सब्ट्रैक्ट करके चेंज इन वोल्टेज निकाल सकेंगे. ठीक है, तो जब आपने एक्सपोनेंशियल मॉडल अप्लाई करना है, लेट्स अप्लाई एक्सपोनेंशियल मॉडल विद इटरेटिव एनालिसिस. तो यू नीड टू थिंग्स. वन इज द डायोड इक्वेशन, V2 minus V1 is equal to VT natural log of I2 by I1. डायोड इक्वेशन, ऑल्दो यहाँ पर आपके पास 3 डायोड्स हैं but they are connected in series and there is the same current is flowing through each diode, the same voltage is appearing across each diode, so that's why the same diode equation is applicable to all the 3 diodes. हर डायोड की सेम डायोड इक्वेशन आती है और हर डायोड की सेम सर्किट इक्वेशन आएगी. So although we have 3 diodes here, but we don't have to solve 3 separate sets of equations for each diode. All the 3 diodes have same equations because they are connected in series. सर्किट इक्वेशन कैसे निकालें? सेकंड चीज, ये डायोड इक्वेशन तो आ गई, सेकंड चीज आपको सर्किट इक्वेशन चाहिए. जी, एनी आइडिया सर्किट इक्वेशन कैसे निकाली जाए? इस सर्किट में कैसे निकालें सर्किट इक्वेशन?
हाँ जी, कैसे स्टार्ट करें? सर ये जो करंट Sir, डिवाइड हो रहा है KCL? इधर हम KCL लगा सकते हैं. So let's start with KCL. So there is one current entering the node and two currents exiting the node. So we have IR is equal to ID plus IL. By Ohm's law, IR can be written as 10 minus 3 VD divided by 1K. By Ohm's law, IL can be written as 3 VD minus 0 divided by 1K. So let's rearrange the terms. We have 10 minus 3 VD by 1K. इस 3 VD by 1K को भी मैं ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे. 3 VD by 1K is equal to ID, or ID is equal to 10 minus 6 VD by 1K. So this is the desired circuit equation. नोट करें, हमेशा आपने सर्किट इक्वेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ VD एंड ID, where VD एंड ID आर फॉर अ सिंगल डायोड. ठीक है, VD और ID आपने VD और ID की टर्म्स में आपने सर्किट इक्वेशन लिखनी है. जी, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा? आप एक्सपोनेंशियल मॉडल को हम आइटरेटिव एनालिसिस से यूज़ करना चाह रहे हैं. सो एक्सपोनेंशियल मॉडल की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स तो हमने पूरी कर ली हैं. हमने डायोड इक्वेशन भी निकाल ली है, हमने सर्किट इक्वेशन भी निकाल ली है. नेक्स्ट हमें एक इनिशियल एस्टिमेट चाहिए. आइटरेटिवली आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इनिशियल एस्टिमेट चाहिए कि V1 क्या रखें, I1 क्या रखें, VD क्या रखें. हाँ जी, क्या रखें ये चीज़ें? VD तो हम टिपिकली 0.7 वोल्ट रख लेते हैं. V1 I1 को इनिशियल कंडीशन को हम यूज़ करते थे. इस प्रॉब्लम में तो हमें इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन. क्या रखें V1 I1? क्या पिछले पार्ट से हम कोई चीज़ बोरो कर सकते हैं कि हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए कि यहाँ से हम स्टार्ट कर लें V1 I1 के लिए? हाँ जी, एनी आइडिया क्या इनिशियल पॉइंट यूज़ किया जा सकता है? सर करंट 7.9 मिली एम्पेयर ले लेंगे. एग्जैक्टली हम पार्ट ए से के रिजल्ट्स जो है उनको यहाँ बोरो कर सकते हैं. वी नो कि दे आर नॉट एग्जैक्टली एप्लीकेबल, बट आइटरेटिव एनालिसिस डज नॉट रिक्वायर एग्जैक्ट रिजल्ट एज द स्टार्टिंग पॉइंट. सो पार्ट ए के रिजल्ट्स जो हैं वी कैन बोरो देम एंड यूज देम हियर. सो V1 को हम 0.7 ले लेते हैं और I1 को हम 7.9 मिली एम्पेयर ले लेते हैं, और इन वैल्यूज़ के साथ हम स्टार्ट करके लेट्स परफॉर्म द आइटरेटिव एनालिसिस. So let's start with iteration 1. So prior to iteration, we have these values. V1 is 0.7 volt, I1 is 7.9 milliampere, and VD will be used as equal to V1 0.7 volt. So iteration 1 mein, what is the first step? We will use the circuit equation to refine ID. Then we will use the diode equation to refine VD. So iteration 1 के लिए हमने ये prior values choose कर ली. So the first step is to use the circuit equation. सर्किट इक्वेशन हमने यूज़ की जो कि हमने निकाली ID इज इक्वल टू 10 माइनस 6 VD डिवाइडेड बाई 1K. उसमें VD को हमने 0.7 वोल्ट यूज़ किया. VD is used as 0.7 volt. We get a refined value for current ID. Then we use the circuit equation, the diode equation. Then we use the diode equation. Diode equation में आप V1 I1 यूज़ करेंगे the values prior to the iteration 1. And I2 will be used as the value computed in the current iteration, 5.8 milliampere. So I2 is the value that has been computed in iteration 1. So as a consequence, you get a better estimate for V2 or VD, which is 0.69227 volts. फिर iteration 2 के लिए आप क्या यूज करेंगे? These results will, जो results of iteration 1 है, they will become V1 I1 for iteration 2. So V1 is this value for iteration 2, I1 is this value for iteration 2. और iteration 2 के दौरान जो आप ID की वैल्यू यूज करेंगे that will be used as I2. So let's repeat the process for iteration 2. ID using the circuit equation, ID is equal to 10 minus 6 VD divided by 1K, where VD is equal to this value. We get a more refined value for the current ID, and this will be used as I2 for iteration 2. So V2 की refined value आप निकालेंगे. V1 I1 will be the values prior to the iteration, and I2 will be the value computed in the current iteration. So similarly हम
आइट्रेशन 3 भी कर लेते हैं और आइट्रेशन 4 भी कर लेते हैं। अब ज़रा देख के बताइए आइट्रेशन 3 और 4 के रिजल्ट्स को, हैज़ द प्रॉब्लम कन्वर्ज्ड और नॉट? यस सर, रिजल्ट सेम आए इसलिए कन्वर्ट हो गया। जी, तो रिजल्ट्स आर द सेम अप टिल 3 डेसिमल एक्यूरेसी। आपने दोनों चीज़ें देखनी है, सिर्फ दोनों चीज़ों को आपने देखना है, करंट्स को भी और वोल्टेज को भी। सो जिस तरह आप रिकॉल करें, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम 3 डेसिमल एक्यूरेसी इंश्योर करेंगे इस किस्म की प्रॉब्लम्स में, व्हेन वोल्टेज इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट एंड करंट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पेयर. So current is 5.845 milliamperes. Current in iteration 4 is the same up till 3 decimal accuracy, and similarly voltage में भी आप देख सकते हैं कि up till 3 decimal accuracy the problem has converged. अगर आपको प्रॉब्लम में कहा जाता है कि 4 डेसिमल एक्यूरेसी इंश्योर करो, तो आप देख सकते हैं कि करंट अभी चेंज हो रहा है, तो फिर हमें हो सकता है एक दो और आइट्रेशंस करनी पड़ती जिनमें 4 डेसिमल एक्यूरेसी में भी आपको चेंज ना नजर आती. सो 3 डेसिमल एक्यूरेसी तक प्रॉब्लम हैज कन्वर्ज्ड. So we concluded that ID is 5.845 milliamperes, VD is 0.692 volts. So Vout is 3 VD. So Vout 3 VD 2.0774 volt. So ये आपके पास रिजल्ट्स आए हैं when you have connected the load. So लोड के साथ ये रिजल्ट्स हैं, और चूंकि हमें कहा गया था कि चेंज निकालो, चेंज Vout निकालो, so change Vout is this current result minus the results of part A जो कि 2.1 वोल्ट था. So this is the change. तो चेंज आपने इस तरीके से इसमें से पार्ट ए के रिजल्ट्स को माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट डेल वी आउट एज -22.6 मिली वोल्ट्स. तो इस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं जब आपके पास स्मॉल सिग्नल मॉडल एप्लीकेबल नहीं है. तो अगर स्मॉल सिग्नल मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल, देन यू कैन परफॉर्म द एनालिसिस in this way and determine the change in output voltage. जी, ये प्रॉब्लम क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन हो? ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन को, जेनर डायोड्स को. सो अभी तक जो हमने बात की है, हमने फॉरवर्ड बायस रीजन की बात की है. सो फॉरवर्ड बायस रीजन में हमने कहा है कि वी हैव 4 ऑप्शंस to characterize the forward bias region: exponential model, constant voltage drop model, ideal diode model and small signal model. Although हमने ideal diode model को कहा है कि वो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, we only use ideal diode model to study a new problem. Mostly हम constant voltage drop model और exponential model को use करते हैं. For specialized cases with DC and AC excitations present in the circuit, we can use small signal model. रिवर्स बायस रीजन को हमने करेक्टराइज किया था, और रिवर्स बायस रीजन के केस में हमने कहा था कि करेक्टराइजेशन और मॉडलिंग इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वंस यू हैव डिटरमिन्ड दैट द डायोड इज रिवर्स बायस्ड, just replace the diode with an open circuit and perform the analysis. Although real diodes have small currents in nanoamps flowing through them, but these nanoamp currents are still small relative to the forward biased milliamp currents. So that's why we can still model a reverse biased diode by an open circuit for the purpose of analysis. और रिवर्स बायस के केस में दूसरा जो पॉइंट था, वो हमारे पास एक रूल ऑफ थंब था. अगर आपको टेम्परेचर के साथ स्टडी करने को कहा जाता है, तो आप उस रूल ऑफ थंब को यूज़ करते हैं. एंड द रूल ऑफ थंब स्टेट्स दैट द रिवर्स करंट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर. तो रिवर्स बायस रीजन में जस्ट ये 2 बातें थी. सो रिवर्स बायस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. अभी तक जो हमने मॉडलिंग मिसिंग है, जो अभी तक हमने मॉडल नहीं किया, वो आपका ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन है. सो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में स्पेशली operation, consistent operation के लिए we design the diodes, and those are called zener diodes. And we will now take a look in zener diodes अगर reverse breakdown region में operate कर रहे हैं, तो how can we model them? उसके लिए क्या options हैं, उसको किस तरह के circuit से हम represent कर सकते हैं for the purpose of analysis. So in the reverse breakdown region, the diode has a very steep IV curve. सो ये हम पहले भी बात करते हैं, या फिर से हम एम्फेसाइज कर लेते हैं कि जो जेनर डायोड्स हैं, उनकी मेन एप्लीकेशन है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, एंड यूजुअली दे विल बी यूज्ड इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन. सो जब आपको जेनर डायोड नजर आएगा, तो उसके केस में आपकी फर्स्ट अजम्पशन होगी कि द डायोड इज इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन.
नॉर्मल डायोड के केस में फर्स्ट assumption is कि डायोड is in forward biased. You perform the analysis and then you verify that the current is positive. Zener diode के केस में first assumption is that the diode is in reverse breakdown region. Voltage regulator again already हम देख चुके हैं is a circuit that is able to provide a constant DC output voltage in spite of the changes in load current, in spite of the changes in feeding power supply. So these special diodes are manufactured for these voltage regulator applications and they are called zener diodes. And their advantage is कि आप अपने zener diode आप अपनी मर्जी का पिक एंड चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या वोल्टेज चाहिए. फॉर एग्जांपल आपको कहा जा रहा है कि 50 वोल्ट का zener diode आपने चूज करना है, आपको 50 वोल्ट्स का रेगुलेटर चाहिए. तो अब अगर आप नॉर्मल डायोड से को यूज करने की कोशिश करें तो आपको बहुत सारे डायोड्स जो है सीरीज में लगाने पड़ेंगे 50 वोल्ट्स अचीव करने के लिए. सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड डिज़ाइन ऑप्शन. अगर एक दो डायोड सीरीज में लगाने पड़ते तो वो तो ठीक था, लेकिन 50 वोल्ट को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे डायोड्स लगाने पड़ रहे हैं सीरीज में. दैट प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम. इंस्टेड आप जेनर डायोड, सुटेबल जेनर डायोड की चॉइस से आप सिंगल डायोड से वही सेम काम कर सकते हैं. So therefore zener diodes as voltage regulator are more desirable and more favorable because they can achieve the required application by using a single component. So ये इनका main advantage है. So ये different symbol है जो zener diode के लिए हम use करेंगे. So we will use a different symbol than the normal diode. So normal diode के लिए हम ये symbol use करते हैं और वोल्टेज और करंट की पोलैरिटी भी इस तरीके से यूज़ करते हैं. जेनर डायोड के लिए हम ज़रा डिफरेंट सिंबल यूज़ करेंगे और डिफरेंट वोल्टेज और करंट की पोलैरिटीज़ भी हम प्रेफर करेंगे. ये पोलैरिटी वोल्टेजेस हमने रीडिफाइन की हैं और इनकी मेन मोटिवेशन जस्ट ये है कि वी प्रेफर टू डील विद पॉजिटिव नंबर्स इंस्टेड ऑफ नेगेटिव नंबर्स. वी प्रेफर टू डील विद पॉजिटिव नंबर्स. सो इसको डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और जेनर डायोड्स को देखेंगे किस तरीके से मॉडल किया जा सकता है. सो वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट. इसको हम यहाँ से रीविजिट करेंगे ऑन फ्राइडे. सो आज का लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं. अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं.